بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ ان دنوں ہماری سکونت شہر سے 100 میل دور تھی۔ روز کالج آنے جانے سے دقت ہوتی تھی۔ تبھی ابو نے فیصلہ کیا کہ مجھے کراچی کالج میں داخل کروا دیں۔ میں بہت خوش تھی کہ پہلی بار کراچی جا رہی ہوں۔ شومئی قسمت کے عین اسی وقت میرے والد کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ داخلے کی تاریخ 2 دن بعد آخری تھی، لہٰذا ابو نے فاخر بھائی سے کہا کہ تم بہن کے ہمراہ چلے جاؤ۔ ہم ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو گاڑی روانہ ہونے کو تھی، تبھی جلدی سے سوار ہو گئے۔ یہ خواتین کے لیے مخصوص کمپارٹمنٹ تھا، مگر وہاں پہلے سے ایک شخص موجود تھا۔ دیگر مسافروں میں ایک عورت کے ساتھ 3 جوان لڑکیاں بھی تھیں۔ ابھی سنبھلنے بھی نہیں پائے تھے کہ گاڑی چل دی۔ بھائی نے سامان اوپر والی برتھ پر جما دیا اور خالی نشست پر بیٹھ گئے۔ چند سیکنڈ کے بعد بوڑھی عورت میرے بھائی سے یوں مخاطب ہوئی، تم یہاں آ کر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ لڑکوں والے ڈبے میں جاؤ، یہ عورتوں کا ڈبہ ہے۔ عورت کی بات سن کر ہم بہن بھائی ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ٹکٹ والد صاحب نے بک کرائے تھے۔ بھائی نے تو عین وقت پر تیاری کی تھی، وہ تفصیل سمجھ نہیں پائے تھے۔ بوگی نمبر تو یہی ہے؟ بڑھیا کی یقین دہانی کو بھائی ٹکٹ نکال کر دکھانے لگے۔ عورت نے اور برا منایا تو ان پر گڑھوں پانی بڑھ گیا۔ بزرگ عورت سے ایسی امید نہیں تھی۔ شاید جلدی میں بوگی نمبر صحیح سے دیکھ نہیں سکے۔ میں نے بات کو سنبھالنا چاہا، آنٹی ٹکٹ چیکر کو آ لینے دیں، اس نے جہاں بٹھایا ہم وہیں چلے جائیں گے۔ میں نے کہا۔ اس عورت نے ہمیں خشمگی نگاہوں سے دیکھا اور بھائی سے بولی، بوگی نمبر دوبارہ دیکھو، یہ مردوں کا ڈبہ نہیں ہے، تم یہاں نہیں بیٹھو گے۔ فاخر بھائی کو اس کے ترش لہجے سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ ٹرین نے رفتار پکڑ لی تھی۔ ٹکٹ چیکر کا کچھ پتہ نہیں تھا، ایسے میں بیگ وغیرہ اٹھا کر ڈبہ تبدیل کرنا ایک محال امر تھا، مگر وہ تو کوئی عجیب عورت تھی، پیچھے ہی پڑ گئی۔ ادھر سے اٹھو میاں، بس میں کچھ نہیں جانتی، ہمارے ساتھ بچیاں ہیں، کسی جوان مرد کا ادھر بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ اب تو فاخر بھائی کو پسینے آنے لگے۔ ان دنوں وہ BA کے طالب علم تھے، تربیت بھی اچھی تھی، لہٰذا تلخی سے جواب دینے میں ادب مانے تھا۔ بزرگ خاتون پیرانہ سالی کے سبب چڑچڑی ہو گئی تھیں، مگر لڑکیاں ہماری مجبوری کو سمجھ رہی تھیں۔ تبھی ان میں سے ایک نے کہا، اماں صبر کر لو، چیکر کو آنے دو، یوں بھی سیٹس خالی پڑی ہیں، یہ لوگ بیٹھ گئے ہیں تو بیٹھا رہنے دو، ان کے ساتھ بھی تو ایک لڑکی ہے، جب دوسری مسافر عورتیں آ جائیں گی تو یہ خود خالی جگہ کر دیں گے۔ عورت بدل نخواستہ صبر کر کے رہ گئی، مگر اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ لگتا تھا کہ بھائی کی موجودگی سے اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ بار بار اپنی لڑکیوں کی طرف دیکھتی کہ کہیں وہ تو اس نوجوان کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ ہماری طرفداری میں ایک ہی لڑکی نے بولنے کی ہمت کی تھی، تاہم بوڑھی نے اس لڑکی کو ناگواری سے دیکھا تھا جو ہماری حمایت میں بولی تھی۔ جو شخص سامنے بیٹھا تھا لگتا تھا کہ وہ ریلوے کا کوئی ملازم ہے۔ اس نے بھی کہا، اماں جی ان کو بیٹھے رہنے دو، تمہارے بچوں کے برابر ہیں، ابھی ٹکٹ چیکر آ جائے گا تو سیٹ کی تصدیق ہو جائے گی۔ ہم ٹکٹ چیکر کا انتظار کرتے رہے، مگر وہ ادھر نہیں آیا۔ بھائی اوپر والی برتھ پر جا کر سو گئے اور میں خواتین کے ساتھ بیٹھی اونگتی رہی۔ میں نے تشکر بھری نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جس نے بڑھیا سے ہماری حمایت کی تھی۔ مجھے اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ بھی مسکرا دی۔ اس کا مسکرانا مجھے اچھا لگا۔ یوں یہ خاموش دوستی کا پیغام تھا، تاہم میں نے بڑی بی کے خوف سے اس لڑکی سے بات نہیں کی، نہ وہ مزید ہم کلام ہوئی، کیونکہ میرا بھائی ساتھ تھا جو اوپر والی برتھ پر سو گیا تھا۔ گاڑی تیز جا رہی تھی، شام ہونے لگی تھی، اب اسٹیشن بھی نظر نہیں آ رہے تھے، کہیں رکتی اور کہیں گزرتی۔ بالآخر ٹرین نے مسافت تمام کی اور ہم تقریباً 7 بجے لاہور چھاؤنی پر اتر آئے۔ یہاں صرف 1-2 مسافر ہی اترے اور وہ تیزی سے لائنیں عبور کرتے نکل گئے۔ ہم ذرا آگے آ گئے، یہاں اندھیرا تھا، ہمیں سواری کی تلاش تھی کیونکہ ابو کے دوست نظر نہیں آئے تھے۔
नज़र भी कैसे आते। हम स्टेशन की बजाय कैंट पर उतर गए थे। उजलत में ख्याल नहीं रहा कि हमें यहाँ नहीं उतरना था, क्योंकि अंकल हमें स्टेशन पर लेने आने वाले थे। ट्रेन तो पल भर में आंखों से ओझल हो गई। अब भैया घबराहट के मारे इधर उधर देख रहे थे कि कहीं टैक्सी वगैरह मिल जाए। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था, कुल्ली भी दिखाई नहीं देता था कि टैक्सी स्टैंड की समत का पूछ लेते। भाई ने बैग उठा रखे थे। स्टेशन से हम निकले तो आगे पुल के पास 5 आदमी बैठे ताश खेल रहे थे। एक भाई को अपनी बहन का सबसे ज़्यादा ख्याल होता है। छावनी से आगे का सुनसान इलाका और उससे आगे बड़ी बड़ी खामोश कोठियाँ, जिनके बीच रास्तों पर किसी आदमजात का नामो निशान नहीं था, जैसे कि लोग यहाँ रहते ही ना हों। जब भाई ने ताश खेलते हुए 5 मर्दों की टोली को देखा तो और महतात होकर चलने लगे। वो इधर से गुजर कर जाना नहीं चाहते थे, लिहाजा दूसरी साइड पर आ गए। अचानक हमें वो लड़की नजर आ गई जो बड़ी बी से हमारी हिमायत में बोली थी। हम उसे देखकर आगे बढ़ गए। मेरा ख्याल था उसके पीछे उसकी माँ और बाकी 2 बहनें भी होंगी। हम आगे आगे चल रहे थे कि अचानक पीछे से आवाज़ आई। उसने हमें ठहरने का कहा था। हम ठहरे तो वो तेज़ी से चलती हुई हमारी जानिब आ गई। वो हम ही से मुखातिब थी। उसने मुझे इल्तिजा की कि मैं अकेली हूँ, गाड़ी लेट हो गई है, रात होने को है, मुझे घर का पता ढूंढना है, आप मेरी मदद करें। लड़की बहुत परेशान थी। तभी मैंने पूछा, आपके साथ डब्बे में आपकी वालिदा और बहनें भी तो थीं, वो कहाँ हैं? वो मेरे साथ नहीं थी, मैं अकेली ही सफ़र कर रही थी। इस इंकिशाफ पर मुझे सख्त हैरत हुई। आप अकेली क्यों सफ़र कर रही हैं? वालिद फौत हो गए हैं, बहन भाई कोई नहीं है। जिस आसामी के लिए दरख्वास्त दी थी, ये हमारे शहर के लिए है, मगर इंटरव्यू कराची में होगा, इसी वजह से आई हूँ। तुम्हारे साथ आने वाला क्या कोई नहीं था? हमने पूछा। हाँ, यही बात है। अब कहाँ जाना है? हमने पूछा। हमारी दूर की रिश्तेदार हैं, पहले कभी उनके घर नहीं गई। अम्मी ने पता समझाया था, मगर गाड़ी लेट होने की वजह से रात होने को थी। घबराहट में घर तलाश नहीं कर सकी। मैंने पूछा, किसी का फ़ोन नंबर है? तो बोली हाँ, खालू जान का नंबर है, मगर अब उनका दफ्तर बंद हो गया होगा। अच्छा, परेशान न हो, तुम्हें जहाँ जाना होगा हम वहाँ छोड़ देंगे। काफ़ी देर पैदल चलना पड़ा, क्योंकि ये ऐसा इलाका था जहाँ रिक्शा और टैक्सी वगैरह नहीं मिलती थी। सभी यहाँ ज़ाती गाड़ियों वाले थे, जो तकरीबन खुदा खुदा करके आगे फोर्ट स्टेडियम के पास हमें टैक्सी मिल गई, मगर उस लड़की के पास लिखा हुआ पता नहीं था। उसे ज़ुबानी याद था। टैक्सी वाले की नीयत ठीक नहीं थी। उसने पते को ढूंढने के बहाने टैक्सी को घुमाना शुरू कर दिया, शायद किराया ज़्यादा वसूल करने की खातिर। काफ़ी देर तक वो आड़े तिरछे रास्तों पर चलता रहा। हम भी इस रास्ते में अजनबी थे। भाई 2-3 बार अब्बू के साथ आए थे, मगर ये शहर मेरे लिए अजनबी था। इस वजह से लड़की से ज़्यादा मैं घबरा रही थी। बिलाखिर भाई ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, अगर तुम्हें पता समझ नहीं आता तो हमें यहीं उतार दो, हम कोई दूसरी सवारी करके चले जाएंगे। काफ़ी किराया बन चुका था, हम मंजिल तक पहुंच नहीं सके। बहस तकरार के बाद उसने एक तरफ टैक्सी रोक ली और अपना मनमाना किराया वसूल करके चलता बना। अब हम तीनों एक अनजानी सड़क पर खड़े थे। भाई की समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग कहाँ हैं। इस शहर के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ तो नहीं थे। तभी आहिस्ता आहिस्ता आगे को चलने लगे, किसी माकूल आदमी को देख रहे थे। तभी एक राहगीर ने रोक कर पूछा, मियाँ आपको कहाँ जाना है? तभी हमने बताया तो वो बोला, तुम तो बहुत दूर निकल आए हो, जिस जगह का तुम बता रहे हो वो बहुत पीछे है। मेरे भाई की परेशानी देखनी थी। अब 2 नौजवान लड़कियां उनके साथ थीं और मंजिल का सही पता नहीं था। बहन की बात और है, मगर जब अजनबी लड़की हमरा हो तो दिल घबराता है। इतने में हमें अचानक अकब से पुलिस की गाड़ी ने आ लिया। हम मुसाफिरों के हुलिये थे, अंदाज बता रहे थे कि भटक रहे हैं। तभी गाड़ी से 2 पुलिस वाले उतर कर आ गए और बोले, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तभी हमने अपनी जगह बताई और लड़की ने बेइख्तियार अपने शहर का नाम ले लिया। इस मुतज़ाद बहन से पुलिस वाला शक में पड़ गया और लड़की से पूछा, तुम इनकी क्या लगती हो? वो हकलाने लगी, उससे जवाब बन नहीं पाया तो पुलिस वाले का रुख मेरी जानिब आ गया। मैंने अपने शहर का नाम बताया तो बोला, अच्छा
तुम तो दो दो लड़कियों को लेकर साथ घूम रहे हो, ये तुम्हारी कुछ नहीं लगती। और तुम क्या लगती हो? मैंने कहा मैं बहन हूँ। पुलिस वाला बोला क्या सबूत है? भाई ये लड़की और बयान दे रही है कि कुछ नहीं लगती और एक बहन है, ये क्या चक्कर है? भाई ने असल बात बताना चाही, मगर उस आदमी ने वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझा। कहा बाकी का हाल थाने चलकर बताना। मुझे तो ये दोनों लड़कियां घर से भागी हुई लगती हैं। बहरहाल पुलिस वाला हमें थाने ले आया। थाने चलकर कहने लगा कि यहाँ पर ऐसे बहुत से जोड़े हैं जो चुपचाप कर शादी करते हैं, कौन पूछता है, मगर हम अपने इलाके में ऐसी बेगैरती नहीं होने देंगे। ये बहुत पहले का वाक़या है, इन दिनों हमारे शनाख्ती कार्ड भी नहीं बने थे। भाई की ज़िंदगी में ऐसा कड़ा वक्त पहली बार आया था। थाने में इन्होंने हमारे बैगों की तलाशी ली। 2 जोड़े कपड़ों और तालीमी इसनाद के अलावा कुछ नहीं मिला। अब यहाँ आ गए हो तो तस्दीक के बगैर जा नहीं सकते, सुबह ही खलासी मिलेगी। पुलिस वाले ने कहा उस अहमद लड़की की वजह से हम बहन भाई भी फंस गए थे, जो अभी तक घबराहट में ऊट पटांग बातें कर रही थी। उसकी हालत काबिल रहम थी। कह रही थी मुझे मेरी खाला के घर पहुंचा दें, सुबह मुलाजिमत के लिए इंटरव्यू देना है। मेरी बेवा माँ ने सिफारिश लगाई है, मगर पुलिस वाला उसे हमारी बदनामी से कोई गर्ज नहीं थी। एक ही रट लगाए जाता कि अभी यहाँ मेहमान रहो, रात का वक्त है, कहाँ जाओगे, सुबह चले जाना। इन्होंने हमें हवालात में बंद कर दिया। दूसरे रोज़ किसी तरह अंकल को इत्तला मिली, वो थाने आए और हमें रिहा करके घर ले आए। लड़की जिसका नाम महनूर था उसे भी हम लोग साथ घर ले आए। तलाशी पर उसके बैग से सिवाय इसनाद के कुछ नहीं मिला था। अंकल तो यहाँ के रहने वाले थे। महनूर ने अपने रिश्ते की खाला का अता पता बताया तो इन्होंने घर तलाश कर लिया और इसे यहाँ पहुँचा दिया, मगर इस नागहानी हादसे की वजह से उसका इंटरव्यू रह गया था, जिसका उसे बहुत कलक था। अंकल ने समझाया बेटी तुम्हारी उम्र की बच्चियों को यूं सफ़र नहीं करना चाहिए, मगर उस बेचारी के साथ भी कोई आने वाला नहीं था। हालात से मजबूर होकर उसने मुलाजिमत की थी, कमाने वाला कोई नहीं था। बहरहाल मेरा दाखिला अंकल ने कॉलेज में करवा दिया, क्योंकि यहाँ हॉस्टल की सहूलत थी। अंकल का घर भी साथ था। अंकल ने अब्बू को यही मशवरा दिया कि वहाँ अगर कॉलेज के साथ हॉस्टल की सहूलत मौजूद नहीं तो सानिया बेटी को भेज दो, मैं सब मामला देख लूँगा। अगर बच्ची घर से दूर रहकर पढ़ना चाह रही है तो किसी बेहतरीन इदारे में क्यों ना पढ़े। इनकी सोच सही थी। हमारे इलाके में गर्ल्स कॉलेज के साथ हॉस्टल नहीं था। मेरी हम जमात लड़कियां तालीम की खातिर अपने करीबी अजीज़ों के यहाँ क़याम करती थीं। महनूर ने जब अपनी वालिदा को इस वाक़े से आगाह किया तो इन्होंने ख़त लिखकर हमारा शुक्रिया अदा किया। कुछ माह बाद हमसे मिलने आईं, क्योंकि वो हमारी शुक्रगुजार थीं। अम्मी अबू इस खातून से मिले तो बहुत मुतासिर हुए। वो वाकई बेवा और बेसहारा थीं। अगरचे 2 भाई थे, मगर अपनी खुशहाली में मस्त अपने घर वालों से बेगाना ज़िंदगी गुजार रहे थे। महनूर के वालिद तो ठीक ठाक ज़िम्मेदार थे, मगर उनकी वफ़ात के बाद नज़दीकी रिश्तेदार उनकी ज़मीन पर काबिज़ हो गए थे। महनूर के चचाओं का ख्याल था कि मरहूम बड़ा भाई औलादे नरीना से महरूम था, जबकि उसकी अराज़ी पर अब उनका ज़्यादा हक है। वालिद ने उस मुसीबत ज़दा बेटी की मदद करने को ठान ली। जो हक़ाइक़ खुलते गए पता चला ये बहुत अच्छे ख़ानदान से हैं। महनूर ने भी अम्मी अबू से मुलाकात की। ये उन्हें बहुत अच्छी लड़की लगी, सो इसे भाई के लिए पसंद कर लिया और उसकी वालिदा से रिश्ता मांगा। इस तरह वो लड़की जिसने कभी हमें परेशानी में डाला था हमारे घर का एक फ़र्द बन गई। शायद इसी तरह इसका हमारे साथ रिश्ता कायम होना लिखा था। अगर वो हमें रेल में ना मिलती और हम साथ साथ ना चलती तो शायद इसका हमसे नाता भी ना होता। सच है, किस्मत में अक्सर ऐसी अनहोनी हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।